Today I am going to discuss minimization problem of linear programming by simplex method. Today we will solve the minimization problem by using chance penalty method, the another name of it BIGAM technique. Okay. In my previous video I discussed the maximization problem. Earlier I discussed why the simplex method is very important to know. Graphical method has some limitation. The main limitation is in the case of graphical method maximum you can deal with two variables. Those upar you can't deal because in that case it will be problem to plot on the graph paper. And in real world, the practical problem, the variables may be 4, 5, 10, 15, even huge numbers of variables also. In that case, computer is used to solve it. That's why you should know algebraic method. Actually, simplex is a algebraic method to solve it. You can solve it by algebraic method. Okay. Now I'm going to start to solve it. This is the problem. Minimize this subject to these constraints. Okay. First, what you will do? Solution. No? We know the method of maximization. वही सफिशिएंट है. मैं मैक्सिमाइजेशन टेक्निक से ही इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हर प्रॉब्लम के लिए इट इज डिफिकल्ट टू नो दैट सेपरेट टेक्निक्स. तो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम to maximization problem first and then you proceed to solve because we know how to solve the maximization problem. That technique we use. That's why it is not very difficult. So first you convert this minimization problem to maximization problem and then solve. Start to solve. How will convert this minimization problem to maximization problem? This is actually objective function. This is called objective function. Minimize this. You just add negative sign to the objective function. Say let z star is equal to minus 2x1 minus x2. This is a new function. Instead of minimization, to maximize this, maximize z star. Z star nothing but the negative of z. This is equal to minus, you can say minus of z. If you maximize in the reverse direction, negative direction, that means automatically it will minimize. तो नेगेटिव साइड में मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वी आर मैक्सिमाइजिंग. तो इट इज सेम एज मिनिमाइजेशन. तो दिस इज आवर न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हाउ वी प्रोसीड? फर्स्ट यू कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटीज टू इक्वालिटीज एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड मेंशन्ड इन माय प्रीवियस प्रॉब्लम. तो हियर see the constant is equal to, greater than is equal to, less than is equal to, different type of signs are used. That's why to convert the inequalities to equalities, you have to add three type of variables: slack variables, surplus variables, and artificial variables. कौन सा variable कहाँ पर use होगा that I will discuss. Just I am noting here slack variables, three type of variables. This is slack variables, surplus variables, and artificial variables. Artificial variables. In this problem, three type of variables are required. So first, write the equation 1. How we write it? From equation 1 you will write in this way: 3x1 plus x2 plus x3 is equal to 3. This x3 will be used as artificial variables. Artificially एक वेरिएबल को मैंने यहाँ पर लाया for the mathematical purpose. In absence of this, you cannot form the basis. That's why it is required. ये artificial variable. This is artificial variable. Okay. For this constraint, equation 2. For equation 2, you have to write in this way: 4x1 plus 3x2. In this case, as it is a greater than type, that's why surplus variable is to be added. Surplus means this is greater than is equal to. To make it equal, something is to be subtracted. Minus x4 is equal to 6. ठीक है? So x4 is the surplus variable.
और जब भी कोई सरप्लस वेरिएबल आ जाएगा तो देयर इज मैंडेटरी मस्ट यू हैव टू ऐड अनदर वेरिएबल व्हिच इज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो x5 इज द आर्टिफिशियल वेरिएबल। ऐसा क्यों, थोड़ा सा आगे देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी रुक जाओ, मैं आगे इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट, this is less than type. For less than type, I have already shown in my previous video, slack variable will be added. That is x1 plus 2x2 plus x6. And this is slack variables. This is slack variables, x6. Slack means कुछ कम है, plus you have to add something, then only it will be equal. अगर ये total अगर 3 होता है तो x6 का वैल्यू 0. If it is 2 तो उसका साथ क्या है, 1 ऐड करने से तभी इक्वल टू होगा, तो x6 का वैल्यू विल बी 1 इन दिस वन। तो 0 एंड पॉजिटिव, एंड दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस 3 माइनस ऑफ दिस। तो इस तरह से लेस देन टाइप पे एक स्लैक वेरिएबल यूज होगा। तो क्या होगा, वो मैं एक बार रिपीट कर रहे हैं, जहां भी इक्वल टू साइन रहेगा यू ऑलवेज ऐड वन आर्टिफिशियल वेरिएबल टू मेक द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो मैं भी दिखाऊंगा। सर ऐसा गैप क्यों रखे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, हाँ ठीक है। So is the gap to show that I am going to show you. I have to fill it to make the complete matrix. वो कैसे पहले दिखा देते हैं, फिर एक बार रिपीट कर देंगे। तो प्लस 0 इंटू x4 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है, बट टू कंप्लीट द मैट्रिक्स यू हैव टू राइट इन दिस। 0 इंटू x3 और ये x5 x4 x5 plus 0 into x6, because 6 variables are used to complete the whole matrix. You have to mention it this way: 0 into x3 plus 0 into x4 plus 0 into x5 is equal to this. So this slack, surplus and artificial variables all will be greater than is equal to 0. x3 x4 x5 and x6 must be greater than is equal to 0. ठीक है, must be greater than is equal to 0. either पॉजिटिव और 0 नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो मैं एक बार रिपीट कर, तो क्या किए हैं, तो एक फर्स्ट हमने किया मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, क्योंकि आई नो द टेक्निक हाउ टू मैक्सिमाइज, इसलिए एक ही टेक्निक मेरे को मालूम है, बट इट कैन बी अप्लाई हियर आल्सो। एक सिंपल सा प्रोसेस यू हैव टू डू। इनिशियली मैक्स मिनिमाइजेशन को मैं माइनस साइन देके रख लेंगे, तो नेगेटिव साइन पे मैं मैक्सिमाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल मिनिमाइज। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में जाके फिर इसको रिवर्स कर देना साइन को। जैसे सब माइनस जेड है तो इसलिए जेड को जो माइनस कर दिए थे तो मिनिमाइज करने के लिए उसको फिर नेगेटिव साइन लगा देंगे। अच्छा, 3 तरह का वेरिएबल यूज हुआ, जहां भी इज इक्वल टू रहेगा वहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल रहेगा, जहां ग्रेटर देन इज इक्वल टू इस तरह का कॉन्स्टेंट रहेगा वहाँ सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये सरप्लस वेरिएबल और उसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये मैंने लिख दिया सरप्लस, ये आर्टिफिशियल वेरिएबल। और जहाँ लेस देन इज इक्वल टू रहेगा वहाँ ऑलवेज स्लैक वेरिएबल। ये दिमाग में रखना है, एमसीक्यू में भी ये आ सकता है। तो ठीक है, तो अभी मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देन टोटल व्हाट विल बी द मैट्रिक्स फॉर दिस। 3 4 कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 3 4 एंड 1 एंड 1 3 2 1 3 2। इसके बाद से देखो 1 0 एंड 0 0 minus 1 0 0 minus 1 0 0 1 0 0 1 and 0 and 0 0 1 0 0 and 1। this is a complete matrix and variables कितना है, 6 है, 6 x1 x2 x3 x4 x5 and x6। ऐसा सब क्यों कर रहे हैं, द रीजन इज हमको दिखाना है कि जो सिंप्लेक्स टेबल हम लोग यूज करते हैं, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी हमने दिखाया, दैट इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स विल बी पुट टू द फॉर्मेट ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल। तो वो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये कैसे वहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। और इक्वल टू राइट साइड में 3 6 3, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्यों यू नो कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x3, यही आ जाएगा। सिमिलरली इसको अगर करते हैं, ये जो तीनों इक्वेशन है इस तरह से इक्वल टू 3 6 3। दिस इज द मैट्रिक्स ए और दिस इज मैट्रिक्स x एंड दिस इज b। इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको भी मैं लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में z स्टार क्यों, क्योंकि मैंने
माइनस साइन देके न्यू फंक्शन बना लिया और इसी को मैं ऑप्टिमाइज कर दिया। तो -2 -1 इसको जो इसको पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों? जबकि मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स को लाए, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो मैं जगह स्पेस को सेव करने के लिए मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। लेकिन इन योर कॉपी विल डू आफ्टर दिस, दैट इज द revision of the objective function. How we revise it? Slack and surplus variables are utilized resources. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये जो कोफिशिएंट है, ये मतलब क्या है कि पर यूनिट 2 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस कोफिशिएंट। ये भी जो वेरिएबल है, जो चीज है, एक 1 रुपीज इज बी कंट्रीब्यूट इन दिस वे। बट स्लैक एंड सरप्लस जबकि अनयूटिलाइज्ड है, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दैट्स व्हाई द कोफिशिएंट इसका जो हो जाएगा स्लैक एंड सरप्लस का, तो कौन सा स्लैक कौन सा सरप्लस है? x4 सरप्लस है, ये स्लैक है। तो x4 x3 आर्टिफिशियल है, तो मैंने पहले आर्टिफिशियल को लिख देगा मान लिया। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरप्लस एंड स्लैक 0 × x6 और आर्टिफिशियल वेरिएबल का साथ एक, इसको मैं चला इरेज कर दूं, तो स्पेस का जरूरत है, इसलिए इसका -m देके एक टर्म ऐड कर देते हैं, -m(x3) -m(x5). सर ऐसा क्यों किया है? -m का मतलब है कि बिग एम टेक्निक्स ए सर्च पेनल्टी मेथड जो बोलते हैं, दैट इज ए ह्यूज हाई वैल्यू नेगेटिव साइन देके मैं आर्टिफिशियल वेरिएबल का साथ अटैच कर दिया। मैथमेटिकल प्रोसेस। क्यों? जब भी इसको मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस में ये हट जाएगा। क्यों सर हटेगा? क्योंकि ये माइनस साइन देके रखा है, तो नेगेटिव साइड में जाएगा। जबकि मैं मैक्सिमाइज कर रहा हूँ तो पहले ये हट जाएगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल को तो रखना नहीं है, ये मैथमेटिकल पर्पस में हम लोग लाए हैं, तो इसको हटाने के लिए यही अरेंजमेंट किया गया। तो ये भी आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो इसको भी मैंने इसी तरह से माइनस साइन देके रखा है। अब इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखेंगे? -2 -1 x3 का कहाँ है? x3 वेयर इज x3? x3 -m है, तो x3 का -m, x4 का है, x4 इज 0, x5 -m एंड x6 इज 0। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6 इस तरह से हो जाएगा। इसको रो इंटू कॉलम करते देखो, -2x1 -x2 -m × x3 -m × x3 प्लस 0 × x4 0 × x4 x5 मीन्स -m × x5 एंड 0 × x6। इसको सजा के भी लिख सकते हैं सीरियली करके, तो यही आ जाएगा। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज द मैट्रिक्स C एंड दिस इज X मैट्रिक्स। वो एक्चुअली मैथमेटिकली क्या हुआ, मैट्रिक्स फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो राइट, इसके नीचे दिखाते हैं, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू Cx, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू Cx, नॉट z स्टार, रिवाइज z, सब्जेक्ट टू ax इज इक्वल टू b और x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, लेकिन उसके सारा x जो है x1 से लेकर x6 ग्रेटर देन इक्वल। ये एक्चुअली दिस इज अ मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ योर लीनियर प्रोग्राम। क्या तो ठीक है? तो मैं क्या किया ये बता देते हैं, क्योंकि इसका आगे जो है मेरे को सिंप्लेक्स टेबल बनाना है, इसको मैं मिटा दूंगा, इरेज कर देंगे, सो दैट आई हैव टू यूटिलाइज दिस स्पेस। देखो थोड़ा बहुत आगे पीछे लग सकता है, तो उसको थोड़ा समझ लेना है, अकॉर्डिंगली डू योर कॉपी। तो प्रॉब्लम क्या था? ये प्रॉब्लम था, मैं एक बार शुरू से एक बार ब्रीफ कर देते हैं। तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था। मेरा कहना है कि आई नो ओनली द मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस, हाउ टू मैक्सिमाइज। तो मैं अलग अलग प्रोसेस पर नहीं जाएंगे, एक ही मेथड को लगाएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये मिनिमाइजेशन से मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। तो हाउ? तो इसका सामने में नेगेटिव कर देंगे, इस जेड को -z कर देंगे, तो मिनिमाइजेशन की जगह पर उसी को मैक्सिमाइज कर देगा। और मैक्सिमाइज की नेगेटिव रिलेशन मैक्सिमाइज करने का मतलब है कि ऑटोमेटिक मिनिमाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमाइजेशन। तो फर्स्ट ये करना है, उसके बाद ये जो कॉन्स्टेंट है सबको इसको इक्वालिटी करना है। और इक्वालिटी रूल मैंने एक बार बता दिया, 3 तरह का वेरिएबल्स का यूज है इस दिस प्रॉब्लम, इसे स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। एक ही प्रॉब्लम में तुमको सारा रूल्स पता चले, इसको ठीक से समझ जाओगे, देन आई थिंक यू कैन हैंडल एनी प्रॉब्लम। तो जहां भी इक्वल टू रहेगा, इन दैट केस यू हैव टू ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल। क्यों आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है? क्योंकि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा क्यों क्या जरूरत है इसका। तो पहले
ये बता देते हैं जब इक्वल टू रहेगा तो आर्टिफिशियल वेरिएबल लाएंगे, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो वो सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, सरप्लस को माइनस कर देंगे क्योंकि ग्रेटर देन मतलब इस तरफ ज़्यादा है, इससे कुछ माइनस करना है तब बराबर होगा, इसलिए सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। सरप्लस और उसका साथ एक आर्टिफिशियल ला रहे हैं, ये x5, और स्लैक में जो है केवल आर्टिफिशियल स्लैक वेरिएबल रहेगा लेस देन इक्वल टू है। तो ये करने के बाद ये मैट्रिक्स का शेप आया जो मैंने दिखाया। अभी इसको मैं सिंप्लेक्स टेबल में ले जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मैं सुधार दिया, रूल बता दिए हैं। जो स्लैक एंड सरप्लस, स्लैक वेरिएबल का मतलब है जो वो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस है, यूज ही नहीं हुआ, सरप्लस भी वही बात है, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ भी चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, दैट्स व्हाई द कोएफिशिएंट इज 0। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है ये टेम्पोरली हम लोग लाए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम में रहना नहीं चाहिए। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल रह जाएगा तो यू कैनॉट इंटरप्रेट, यू कैनॉट गेट द रिजल्ट। तो उसको आउट करने के लिए प्रोसेस में ये प्रोसेस को एडॉप्ट किया जाता है। एक ह्यूज साइज का मैग्नीट्यूड का अमाउंट जो है नेगेटिव साइन देकर रखा गया है, माइनस m बोलते हैं, तो इस कुछ भी वैल्यू से ये ज़्यादा है, तो करने के बाद ये वैल्यू आया, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मैं स्पेस को निकालने के लिए कुछ चीज़ें को मेरे को इरेज करना पड़ेगा। बहुत हमारी प्रॉब्लम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑल टाइप ऑफ रूल्स आर हियर, तो इसलिए थोड़ा इधर समझाना जरूरी है। इसको ठीक से समझ जाओगे तो आई थिंक सब तरह का प्रॉब्लम डील कर पाओगे। देखो बात क्या हो रहा है, वेरी द प्रॉब्लम 6 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है, इक्वेशन है कई 3 इक्वेशन, 1 2 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल्स, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, मैं सॉल्व कर पाऊंगा। 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, मैं कर पाऊंगा। 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशंस है, मैं कर पाऊंगा। लेकिन 3 इक्वेशंस और 3 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, तब तो मैं यूनिक सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तब क्या करना है, तब कोई ना कोई वैल्यू को मेरे को जीरो कर देना है, ओनली देन वी कैन सॉल्व इट। तो यहाँ 3 इक्वेशन है, इसलिए 3 वेरिएबल को हमको जीरो कर देना है, तब जाके मैं इनिशियली एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन और कुछ नहीं, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से मैं धीरे धीरे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते जाएंगे, करते यहाँ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमारा सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो कंडीशंस है उससे हम देखेंगे, जब पहुंच जाएंगे कहाँ रुक जाएगा, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उससे आगे जाएंगे तो फिर वैल्यू घट जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, स्टार्ट करना है जो 3 वेरिएबल को पहले जीरो करके रख देना, क्योंकि 6 वेरिएबल है और मैं 3 इक्वेशंस मिला। तो अब बात आ रहा है जब सर कौन सा आप कीजिएगा, इसमें तो बहुत सारे क्या, x3 को जीरो कीजिएगा, x4 को जीरो, x6 को कीजिएगा, x7 को कीजिएगा, किसको करना है, इसी का लिए ये व्यवस्था किया जाता है, जो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें फायदा ये हो जाएगा जो बाकी सारा वेरिएबल को मैं जीरो कर देंगे, जिस साथ बाकी कौन सा वेरिएबल है, x1 को मैं x1 इक्वल टू 0 कर देंगे, x2 इक्वल टू 0 कर देंगे, इसका बराबर में कौन सा है 1 का बराबर थर्ड, x3 को रखेंगे, x4 को भी 0 कर देंगे, x4 को 0 कर देंगे, x0 को 0 कर देंगे, और बाकी कौन सा रह जाएगा x3 x5 x6, इस तरह से रह जाएगा। बाकी को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगा, और इसका वेरिएबल कौन सा रहेगा 1 0 0 का x3 ये रहेगा, और कौन सा रहेगा x5 x6 ये रह जाएगा इक्वल टू 363 क्या दिखाई पड़ रहा है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ बोर्ड में, ठीक है जा रहा है, कट तो नहीं जा रहा है ना, 363 ठीक दिखा देगा। तो इसमें फायदा हो, बाकी को देखो x1 x2 x3 सबको जीरो कर दिया, तो बाकी इतना रह जाएगा ना, रो इंटू कॉलम, ये तो कॉलम है, ये रो है, तो करने दिस रो इंटू कॉलम करने से क्या हो जाएगा x3, बाकी तो 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6 इज इक्वल टू, ठीक है। दूसरा करेगा रो इंटू कॉलम, इस रो को इस कॉलम से करने से x5 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 6, और x6 इज इक्वल टू 3। ये सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाता है। तो ये 1 0 0 0 1 0 ये करने के लिए मेरे को आर्टिफिशियल लाना पड़ा। अगर मैं यहाँ आर्टिफिशियल नहीं लाते हैं, ये नहीं लाते हैं आर्टिफिशियल, तो कहाँ से मेरे को 1 मिलता, ये 1 तो यहाँ से आएगा 1 0 0, समझ गया ना बात अभी। तो एक्चुअली इसका लिए इस सुविधा करने के लिए फिर जहाँ सरप्लस आता है वो तो माइनस होता है, माइनस में तो काम चलेगा नहीं 0 1, इसलिए फिर आर्टिफिशियल लाना पड़ा। और इसमें तो स्लैक वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 आ जाता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। तो मैंने क्यों ऐसा किया, एक बार मैं थोड़ा सा हल्का सा रिपीट कर देते हैं, धीरे से सोच लेंगे। ये मैट्रिक्स फॉर्म इज दिस, यहाँ दिक्कत ये है कि मैं
सॉल्व करो धीरे धीरे, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो सारा वेरिएबल को मैं एक साथ लेके कैसे चलेंगे, तो क्योंकि मेरा सामने इक्वेशन 3 है, कंडीशन 3 है, लेकिन वेरिएबल आ गया 6, तो मैं कैसे प्रोसीड करूं, तो इसलिए करना क्या, फोर्स 3 वेरिएबल को जीरो कर देना। अगर 6 वेरिएबल रहता, 2 इक्वेशन रहता, तो 4 वेरिएबल को जीरो करना पड़ता। और किसको रखोगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब मैं सिंपलेक्स टेबल का यूज करेंगे, ध्यान रखना, जब ये 1 0 0 0 1 0 इसी को ही मैं रखेंगे सॉल्यूशन में, जो बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये देखो ये आसानी से तुम्हारा ये सॉल्यूशन निकल जाता है, ये रो इंटू कॉलम x इक्वल टू 3, जैसे ही x5 इक्वल टू 6 एंड x6 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये एग्जाम में इतना डिटेल इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो इट, दैट्स व्हाई। तो मैं अभी यहाँ से यहाँ तक मिटा दूंगा, इरेज कर देंगे, सो दैट आई कैन गेट द स्पेस। ये एक्चुअली सिंपलेक्स टेबल में जाएगा। सिंपलेक्स टेबल कुछ नहीं, जो सिंपलेक्स टेक्निक बोलते हैं, तो इसी को ही एक तरीका से सिस्टम से उस पर रखा जाता है और धीरे धीरे प्रोसेस यूज करके सॉल्व किया जाता है। तो आई हैव टू इरेज अप टू दिस, तो धीरे धीरे कर देते हैं, सो दैट तुम्हारे पास कॉपी में लिख के रखोगे, तो आगे जाके इसका यूज है। तो मैं इसको सब मिटा दूँ, तो आई हैव टू यूज दिस स्पेस, नीचे का बीट ना जाए, तो इट विल बी प्रॉब्लम फॉर मी। मैं कॉपी में रखे हैं, सॉल्व कर लिए हैं। तो मैं अभी सिंप्लेक्स टेबल दिखाते हैं इस तरह से, इसके नीचे सिंप्लेक्स टेबल बना हुआ है, इतना तक करके तब सिंप्लेक्स टेबल पर जाते हैं। तो सिंप्लेक्स टेबल में 6 वेरिएबल आएगा, तो इस तरह से दिस इज द शेप ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल। तो फिर से ड्रॉ कर देते हैं, देखिए स्केल है, स्केल मिलेगा तो थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा। ठीक, स्केल मिल गया है। ठीक, एक बार कोशिश करते हैं स्केल से। तो 6 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, x5 एंड x6 सिंपलेक्स टेबल पर जा रहे हैं। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल्स को लिखा जाता है, दिस इज द सिस्टम, और यहाँ कोफिशिएंट जो है उसका लिखा जाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं यहाँ उठा के लाई, क्योंकि इसका नीचे 3 4 एंड 1 1 3 2 1 3 and 2 1 0 and 0 0 minus 1 and 0 0 1 0 0 1 0 and 0 0 1 0 0 1। ठीक है, समझ गए। तो ये बॉडी ऑफ द सिंपलेक्स टेबल इस तरह से रहेगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, टॉप में यहाँ पर लिखा जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो मैट्रिक्स है, ये टॉप पे लिखा जाएगा, दिस इज -2 x1 का -1 ऊपर पड़ जाएगा, माइनस x3 का x1 x2 x3 का माइनस m है, तो ये माइनस m। ठीक है, x3 फिर 0, तो इसलिए सीरियल लिख रहा है -m, आर्टिफिशियल वेरिएबल ये है, एंड इसको ठीक है 0 0। तो ये मैट्रिक्स जो है ये टॉप पे जस्ट वेरिएबल का एड्रेस में लिख रहा है, ध्यान रखना कोई कंफ्यूज ना करे। x4 क्या था, हम तो मिटा दिए हैं, तो कागज से मैं देख लेता हूँ। x4 था सरप्लस, इसलिए 0 है, स्लैश सरप्लस में 0 रहता है, और आर्टिफिशियल था x3 एंड x5 ठीक है, गलत नहीं है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यहाँ पर रख लेंगे। मैं इसको बीजा देना अभी, तो मेरे को स्पेस चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आएगा, बेसिक सॉल्यूशन मैं अभी भी बोला 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 x3 x5 x6 इसी को लिखेंगे। x3 1 जहाँ पर रहेगा, x3 और x5 और x6 ये x6, ये बेसिक सॉल्यूशन है। ये वैल्यू कितना रहेगा 363 इक्वल टू था ना, तो इसका सॉल्यूशन 3 6 एंड 3। ठीक है, इस तरह से ये भी ध्यान दे सकते हैं, जहाँ 1 है ना जिसका, वो वैल्यू यहाँ पर जाएगा और उसी का वैल्यू लिखा जाएगा। करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। x5 का देखो मिडिल में x5 यहाँ 1 है, उसी का वैल्यू रह जाता है। लास्ट y का देखो यहाँ x6, इसलिए x6 इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसका कोफिशिएंट को यहाँ पर लिखा जाएगा, x3 का कोफिशिएंट क्या है -m, और x5 का क्या है, ये भी -m, और x6 का 0। तो इसी तरह से
पास टेबल को, इसी को मैंने बॉडी ऑफ द सिंप्लेक्स टेबल कर लिए है, दिस इज द बॉडी ऑफ द टेबल। और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को टॉप में रखोगे, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन को एक मीन्स बेसिक सॉल्यूशन पे ये रखेंगे, और ये जो है इसका कोफिशिएंट, ये जो डिसीजन वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट को क्या लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज, बेसिक सॉल्यूशन यही तो बड़ा सॉल्यूशन है, और ये वेरिएबल जो भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है उसका वैल्यू 0 है। देखो x1 नहीं है तो x1 इज 0, x2 भी यहाँ पर नहीं है, x2 भी 0, x4 भी नहीं है, तो यहाँ का अलावा जो भी वेरिएबल्स है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही तो मैं फोर्स 0 की थी ना, तो इतना तक हो गया। मैं इसको बिटा देता है क्योंकि ये स्पेस मेरा रफ वर्क के लिए जरूरी है। तो कैसे सिंप्लेक्स टेबल बनता है दैट है डिस्कस, इसे इतना तक भी कर दोगे देन ऑल्सो यू विल गेट अप 50% मार्क्स, यहाँ तक आ जाएगा। अब लेकिन मैं धीरे धीरे जो इनिशियल सॉल्यूशन है इसको इंप्रूव करते चलेंगे। ये जो भी मेरा बेसिक सॉल्यूशन है ये तो कोई बेस्ट सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बेस्ट है कि नहीं वो प्रूव करने के लिए, वो देखने के लिए एक कंडीशन अप्लाई करेगा, आगे जाके मैं बता रहा हूँ। तो इसको मैं बिता देता हूँ। तो ये है ये बॉडी ऑफ द मैट्रिक्स, ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे चला जा रहा है, और ये जो वेरिएबल है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का जो है वेरिएबल्स उसका, और ये इसका कोफिशिएंट, इसको मैंने x3 का माइनस है इस तरह से। तो इसको मैं बिता दूँ, इसका जरूरत नहीं है अभी। रफ वर्क में सब चीज़ दिखाना है जहाँ जरूरत है, ठीक है, नहीं तो मार्क्स काट लेता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि मैं मैक्सिमम पर पहुँचे कि नहीं। दिस इज हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं, वी हैव टू चेक वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम ऑन टॉप, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसको थोड़ा लाइन बना लेते हैं, तो और एक टेबल इस पर करना पड़ेगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैंने किया था द सेम प्रोसेस यू हैव टू अडॉप्ट टू फाइंड आउट द एलिमेंट्स ऑफ द इंडेक्स रो, जिसको बोलते हैं इंडेक्स रो, उसका नाम है इंडेक्स रो। वाई इंडेक्स इसी से पता चलता है कि वी हैव रीच्ड टू द ऑप्टिमम और नॉट। इन दिस केस मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम पूछे कि नहीं, यहाँ का सारा वेरिएबल्स है पता चल जाएगा। क्या रहेगा यहाँ पर जो है ZJ माइनस CJ, ये वैल्यू यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा सब, तो हम समझ जाएंगे वी हैव रीच्ड टू द ऑप्टिमम, वी शुड स्टॉप, हमको रुक जाना है। तो देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। शुरू में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा देन इट इज़ वेरी इजी। जैसे मेरे से कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि हमने बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट्स राइट। तो तुम भी कर लो, इनिशियल थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड है, तो रूल लेकिन एक ही है, जो रूल मैं एक बार अप्लाई कर रहा हूँ बार बार। तो फर्स्ट में इसका वैल्यू निकालना, रूल क्या, दिस इंटू दिस, ध्यान देना, दिस इंटू दिस प्लस करके प्लस दिस इंटू दिस, टोटल जो जाएगा उससे माइनस ये करोगे करके ये वैल्यू रखेंगे। फिर इसी का जो है दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो टोटल हो जाएगा उससे ये माइनस कर देंगे। इसी सेम प्रोसेस सब कर देंगे। तो रफ वर्क में नीचे दिखा रहा हूँ, बिटा दे दिया क्योंकि मेरे को ईबीएस स्पेस यूज कर रहा है। तो तुम लेकिन कॉपी में तुमको रफ पेज में इसको दिखाना है। तो पहला वाला मैं निकाल देता हूँ, और सब मैं नहीं करूँगा क्योंकि इट विल टेक टाइम अननेसेसरली, वीडियो भी बड़ा हो जाता है। तो 1 2 3 को कर देंगे, बाकी 3 का वैल्यू मैं पुट कर देंगे, तुम लोग कर देगा। तो पहला वाला दिखाते हैं, तो -m इंटू 3 दैट इज -3m, ठीक है, प्लस -4m दिस इंटू दिस, तो -4m, और फिर 0 इंटू दिस, तो 0 ही हो जाएगा। तो टोटल जो हो रहा है इससे माइनस कर दे रहा है टॉप में जो है इसमें, तो माइनस ऑफ -2, तो कितना हो रहा है -7m प्लस 2, तो यहाँ का वैल्यू हो जाएगा -7m प्लस 2। समझ में आया? अगर नहीं है यहाँ तो फिर इसको कर देते हैं सेम प्रोसेस, उससे देख लेना, दिस इंटू दिस दैट इज -m, 1 इंटू -m इज -m, 3 इंटू -m -3m, ठीक है, और 0 इंटू 2 मीन्स प्लस 0 0, तो इसे नहीं लिख रहे हैं, माइनस ऑफ मतलब ये माइनस, तो कितना हो जाएगा -4m प्लस 1, तो -4m प्लस 1। और एक का मैं दिखा देता हूँ, बाकी का नहीं दिखाएंगे मैं, क्योंकि टाइम फिल करना नहीं है। आई थिंक हम लोग वो एडवांस स्टेज में है, समझ जाओगे। दिस इंटू दिस -1 इंटू m इज -m, और 0 से जैसे मल्टीप्लाई करते 0 ही हो जाएगा, दिस इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ ये माइनस है, तो माइनस ऑफ प्लस, तो कितना हो जाता है इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और बाकी का क्या रह जाएगा, तो मैं इधर पुट कर देता हूँ 0, तो -7 4 प्लस 0, ये m ये चेक कर देगा 0 एंड 0, ठीक है। थोड़ा टाइम मैं सेव किया क्योंकि इसको करने जाएंगे, सेमी प्रोसेस है। अच्छा, मैं इसको बीटा देता हूँ क्योंकि स्पेस इज रिक्वायर्ड, तो बार बार उसको चला के देख सकते हो, अगर कोई समझ नहीं है तो रिपीट कर सकते।
तो क्या वी हैव रीच टू द ऑप्टिमम, क्या हमारा काम हो गया, क्या इससे चेक होगा। ये जो इंडेक्स का वैल्यू है, ये अगर सारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसको जेड जे और सी जे बोलते हैं। इसका मैथमेटिकल पोर्शन में जाना नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, सिर्फ जो प्रोसेस है उसको सॉल्व करना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो देखो ये -7 एम तो बहुत बड़ा है इसलिए नेगेटिव है, ये भी बहुत नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव है, तो सारा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ नहीं है, तो यह ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो आगे हमको जो करना है, अगर सारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो स्टॉप, अगर नहीं आया, एक नेगेटिव आया तो यू सिलेक्ट, अगर एक से अधिक नेगेटिव आया देन सिलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव। ठीक है, छोटा नेगेटिव को सिलेक्ट करोगे तो अननेसेसरी आइटरेशन बढ़ जाएगा। तो मोस्ट नेगेटिव इज दिस, आई थिंक इट इज क्लियर, क्योंकि -7 है, ये तो -4 है, तो इसलिए दिस इज मोस्ट नेगेटिव, उसको सिलेक्ट करो, यू सिलेक्ट इट। ये कॉलम को इसको मान लो मैंने घेर देता हूँ, मैं दूसरा कलर यूज करूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं ब्लू यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट किया, इस कॉलम को मैं बोलते हैं की कॉलम, इसका नाम है, टेक्निकल नाम इज की कॉलम, की कॉलम। ठीक है, दिस इंडिकेट, ये जो माइनस है इंडिकेट कर रहा है, ये जो तुम्हारा वेरिएबल्स लिए हैं इट इज नॉट द बेस्ट, इसको इंप्रूव करने का जगह है। जब मैक्सिमाइज कर रहे हैं कैसे, ये ले आएंगे बेसिस में, डिसीजन में, तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको लाएंगे, ये डिसाइड हो गया, लेकिन किसका जगह पर, 3 जगह है, 1 2 3, यहाँ पर प्लेस करेंगे x1 को, इसको रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ये सब लाने से फायदा नहीं है, इसको भी लाने से, इससे फायदा इससे लाने से, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव ये बात होगी। अभी कौन जगह पर जाएगा ये x1 डिसाइड करने के लिए, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज इसका साथ, 3 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 4 एंड 3 डिवाइड करके देखोगे किसका रेशियो सबसे छोटा है। मैं करके दिखाता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1, और 6 डिवाइडेड बाय 4, ये जो या 6 डिवाइडेड बाय 4, ये की कॉलम का ही देंगे, ये सब नहीं, 6 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब कितना हो गया कि 3/2 1.5, और 3 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3। तो तीनों रेशियो में जो सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट उसको आइडेंटिफाई करना, कौन सा लोएस्ट है, ये लोएस्ट है, तो इसका नाम है की एलिमेंट, इट्स अ की कॉलम, और इसमें जो लोएस्ट जो आ रहा है उसको बोलेंगे की एलिमेंट, की एलिमेंट, की एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, तो सेम प्रोसेस तुम्हारा सब प्रॉब्लम है, एक ही प्रोसेस है। तो अगर ये मोस्ट नेगेटिव होता तो क्या करते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, देखते हैं लोएस्ट कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तैयार हो गया कि इसको हटाना है, और यहाँ जगह पर x1 ये बैठेगा, ये क्लियर हो गया। अगर लोएस्ट रो अगर ये होता, लोएस्ट रेशियो से कि ये 0.5 आ रहा है, 1.5, तो ये तुम्हारा की एलिमेंट हो जाता। तो इस जगह पर मैं x1 को लिखता हूँ, आई थिंक इट इज क्लियर। तो इतना तक हो गया, अब आगे क्या करेंगे, आगे का लिए मैं दिखाते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसी पर ही कर लेंगे, तो बाद और एलिमेंट जाएगा तब बताना पड़ेगा, कोई कोई नहीं है, तो इसको मैं स्केल से थोड़ा सीधा कर देते हैं। इसमें मैं सबको नहीं करेंगे, जितना मिनिमम करेंगे बाकी तुम लोग करोगे, ऑलरेडी मैं याद ही है, इसलिए दिखाया, तो उसको पहले मैं डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया वेरिएबल को, तो ये हट जाएगा, यहाँ पर x1 आ रहा है, तो x1 इक्वल टू x5 तो रहेगा, x5 रहेगा और x6 भी रहेगा। अच्छा, तो जब ये तैयार हो गया, ये तो रहेगा, इसका कोफिशिएंट को लिख देते हैं, x1 का कितना है -2, ये -2, x5 का क्या है, x5 -m, जो था वही तो रहेगा, x6 का 0। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, ये जो नया आ गया ना, तो इसका मतलब ये जो की कॉलम हो गया, तो ये की एलिमेंट से एंटायर रो को डिवाइड कर दोगे, इससे जो है एंटायर रो को डिवाइड कर दोगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, तो ये 100 को लाने का लिए पर्पस यही है। और तुम लोग जानते हो कोई भी इक्वेशन का दोनों साइड में अगर एक ही चीज़ से डिवाइड कर देते हो तो मैथमेटिकली कोई रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पस तो 100 करना है ना, इसको 100 करना है, इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 3 से एंटायर रो को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3/3 तो 1 हो जाता है, ये भी 1 हो रहा है, ये 1/3 एंटायर रो को मैं ये एंटायर लाइन को डिवाइड कर दे रहा है, 0 0 एंड 0। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। अब क्या है कि फोर्स तुम इसको 0 0 बना के रख दो, क्योंकि मेरे को ये करना पड़ेगा टू हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन, लेकिन कैसे 0 बनाएंगे वो टेक्निक मैं नीचे दिखा देता हूँ। ऐसा तुम्हारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैं यही चीज किया था, देखोगे वहाँ जो 0 0 करके रखा। अब 0 कैसे करेंगे इस रो को, तो क्या करना है, दिस इज ओल्ड रो विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज्ड रो, क्या करेंगे कि 0 बन जाएगा, वो करके मैं दिखाता हूँ। तो पहले ओल्ड रो को देख लेते हैं, ओल्ड रो क्या है, या रफ वर्क में जाएगा, ये अभी रफ वर्क में जा रहा है, 6 4 3 0
-1 माइनस और +1 -1 +1 0, 1 है, +1 0। अच्छा, कहाँ पर 0 लाना है? सेकंड पोजीशन में, यहाँ पर 0 करना है। तो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज, जो नया रो आया, विद द हेल्प ऑफ क्या ऑपरेशन करेंगे कि मेरा यहाँ पर 0 बैठ जाएगा। तो मैं क्या करेंगे, ये जो नया रो आया, ये तो यहाँ पर 1 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आ जाएगा ना। देखो मैं करके दिखाता हूँ। तो कोई भी रो को दोनों साइड में एक चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/3 0 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 0, तो 0 0। अब जो एंटर नया रो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या आ रहा है, 2 0 0 आ गया ना, 0 चाहिए मेरे को। ये नीचे ये क्या आ रहा है, 3, और ये 5/3, ये -4/3, ये -1 +1 0। इस तरह से ये रिवाइज रो बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये इसका भी करना है ना, उस समय में समझ लेना। और एक बार 2 0 बचाता, वेट करने से वीडियो बढ़ जाएगा, अननेसेसरी टाइम की होगा। -4/3 अगला भी मेरे को करना है, इसलिए उसमें अगला लाइन में भी तो बाद देख 1 0। ठीक है, ये सब राफ में जाएगा। अब ये रो का क्या हो जाएगा, देखो इस रो का, अभी तो हम लोग क्लास में तो नहीं है, नहीं तो मैं फिर पूछ के करते, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज्ड जो नया रो बना उसका थ्रू करना है। दिस इज द बेस्ट टेक्निक। इसे एक एक बुक में एक एक तरह का किया हुआ है, तो हमने एक मेथड लेके चलते हैं। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट प्रोसेस, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश से, बंगाली से हैं, संस्कृत से, वो भी तो पढ़ते हैं ना, तो इसलिए उनका लिए ये आसान हो जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग बुक्स में जाओगे, वहाँ देखोगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला का प्रोसेस थ्रू जाता है, और कोई कोई बुक्स में अलग अलग नियम है। कोई बुक में तो खाली मिनिमाइजेशन लेके डायरेक्ट चालू किया है, तो लेकिन मैंने मैक्सिमाइजेशन जो स्टैंडर्ड सारा बुक्स में है, अंतिम स्वरूप में है, उसके बाद गुप्ता का पुट्टा है, बहुत सारे बुक्स में जो है ठीक का पुट्टा है, सब में जो रूल चलता है तहा का, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस रो को कैसे दिस द ओल्ड रो, लेकिन हमको यहाँ 0 लाना है, तो पहले ओल्ड रो को लिख लेते हैं। दिस इज द थर्ड रो, 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1। ये तो मेरा ओल्ड रो है ना, तो इस पर क्या करेंगे कि यहाँ पर 0 बैठ जाएगा, खाली 0 को मिला देना है। तो देखो ये दिस इज द रिवाइज रो, इसी का आधार पर करना है। तो ऑलरेडी देखो सेकंड पोजीशन में 1 है, तो कुछ नहीं, ये रिवाइज रो को तुम सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी 0 मिल जाएगा। तो रो ऑपरेशन में तो एक रो को और एक रो के साथ हम जोड़ भी सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मैं ये रिवाइज रो को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 1 1/3 1/3 0, सॉरी मैंने कुछ गलती तो नहीं करा, 1 1 1/3 1/3 0, हाँ 2 0 है, 0। ये सब राफ में दिखाना है, यहाँ पर नहीं, लेकिन मेरे को तो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ये 0 ये 3 है, 5/3 -1/3 0 0 ये 1, ये आ जाएगा 2 0 5/3 -1/3 0 0 1 0 0 एंड 1। मतलब मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, कभी जल्दीबाजी में थोड़ा हो भी सकता है कि 0 5/3 -1/3 0 0 1 2 0 5/3 -4/3 -1 1 0 1 1/3 1/3। ठीक है, ये तो हो गया सारा। तो क्या किया, कैसे किया, अगर मान लो मैं बोल देते हैं यहाँ पर से कि हाफ रहता, यहाँ हाफ, तो क्या करते हैं, यहाँ अगर हाफ रहता तो क्या करते हैं, मैं इसी को हाफ से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हाफ रहता, इफ यू मल्टीप्लाई बाई हाफ, देख जाइए अभी हाफ आ जाता तो 0 हो जाता, सबको हाफ से मल्टीप्लाई करके तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यही प्रोसेस है। तो ठीक है, ये रफ मेथड मैं इसलिए मिटा दिए। और फिर यू हैव टू फाइंड आउट द इंडेक्स रो। इंडेक्स रो कैसे निकलेगा, इंडेक्स रो कोई रूल तो मैंने पहले बता दिया था, सेम रूल। मैं 2 ठो करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सब सिमिलर है। मैं इसको दिखाएंगे और इसको दिखाते, थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए, और इसको तो सबसे अच्छा यहाँ तक कर देंगे, बाकी 3 नहीं करेंगे। तो इसको ये दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस करके इसे माइनस कर देना है। तो क्या रहेगा, -2 माइनस +2, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं समझे, ये -2 और आप लोग दिखाते हैं 1 × -2, बाकी तो 0 0 हो गया। ये माइनस ऑफ -2, तो ये +2 -2 +2 = 0, तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको दिखाते हैं, इसको दिखाएंगे, उसको कर लेना। ठीक है, तो -2 × 2/3 -2 × 1/3 दिस इंटू दिस, प्लस -m × 5/3 -m × 5/3, और ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाएगा ये,
जो टोटल आया 5/3 इससे माइनस कर देना है। कौन सा हम लोग कर रहे थे इस, सही तो -2 × 12/3 माइनस में +1, दिस इज +1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू -5/3m, और ये क्या हो रहा है तो 1 - 2/3, 1 - 2/3 मीन्स 3, ये 1/3 हो जाएगा, 1 - 2/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू -5/3m प्लस 1/3 इसी तरह से। फिर इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर दिस, तो 0 - 5/3 प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, टोटल -m। ये करेंगे तो देखोगे ये आ रहा है, आई एम नॉट डूइंग दिस, 7/3m -2/3, ये अपने से कर दोगे, ये प्रोसेस इज सेम, 7/3m -2/3, और ये प्लस m आ जाएगा, ये भी प्लस m, ये प्लस m आ जाएगा, ये 0, ठीक है। तो अगेन चेक, क्या चेक करना है, इंडेक्स रो का क्या सारा पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, इसको मैं मिटा देते हैं, ये सारा पॉजिटिव आया, नो, ये पॉजिटिव आया, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, ये देखो माइनस है, एक ही नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज द की कॉलम। तो इसका मतलब है, इट इंडिकेट्स कि ये वेरिएबल को डिसीजन में लाना है, इससे फायदा होगा, बड़ा वैल्यू बढ़ जाएगा, जबकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो ये तो टैग हो गया, दिस इज की कॉलम, तो इसको लाना है, लेकिन कहाँ लाना है, यहाँ इस इन दिस प्लेस और इस प्लेस, इस प्लेस, ये डिसाइड करने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज, जो पहला स्टेज में भी दिखाया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/3, 1 डिवाइडेड बाय 1/3 इज इक्वल टू 3, इससे डिवाइड कर देना है। 2 डिवाइडेड बाय दिस, 2 डिवाइडेड बाय दिस इज 6/5, 2 डिवाइडेड बाय 5/3 इज 3 × 6/5, दिस डिवाइडेड बाय दिस अगेन 6/5, तो ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट और 1.2, ये भी 1.2, ये हो जाएगा ना। 2 डिवाइडेड बाय दिस, एक बार दिखा देते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 5/3 इज इक्वल टू 2 ऊपर में 3/5, 6/5, 5 पॉइंट देखिए 0 हो जाएगा, तो कौन सा लोएस्ट है, देखो दोनों लोएस्ट सेम है, देन व्हाट यू विल डू, तो कौन सा लोगे, अगर दोनों अगर सेम रेशियो है, लेकिन हमारा रूल था बताया था कि लोएस्ट रेशियो को सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर जबकि कौन सा करना है, दोनों का लोएस्ट है, मैं इसको ले लेंगे, इसको, क्योंकि इसको लाने से क्या है वैल्यू बढ़ जाएगा, एडवांटेज इज देयर, दैट्स व्हाई ये आर्टिफिशियल को भी हटाना है। अगर इसको मैं लेते हैं, क्या समझ में आया, इफ आई टेक दिस रो, इसके साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल जुड़ा हुआ है, वी ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो इसलिए दोनों बराबर है, लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस ये x3 जो है, x3 को अगर लाएंगे तो कोई फायदा नहीं, यहाँ पर हटाएंगे नहीं x6 को, क्योंकि x6 तो 0 स्लैक सरप्लस है, तो आर्टिफिशियल इज द मोस्ट डेंजरस, उसको मैं इसको हटाना पड़ेगा, वो अगर रहेगा तो कांट फाइनली सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, तो x5 का जगह पर जो है हमारा x2 आ जाएगा नेक्स्ट टेबल में, तो नेक्स्ट टेबल में तो जगह बहुत कम है, तो मैं यहाँ तक टेबल को बना के फाइनल रिजल्ट को लिख देंगे, अदरवाइज और निश्चित सेम टाइम भी लगेगा। तो क्या करना है, तो मेरा x1 तो रहेगा, x1 एज इट इज रहेगा, x5 का जगह पर x2 लाएंगे, और x6 का जगह पर नया कुछ करना पड़ेगा, x6 ये आ जाएगा, ठीक है। तो x2 को मैं जो बोले थे रूल क्या है, यहाँ पर 1 लाना चाहिए, यहाँ 1 लाना पड़ेगा, तो दिस इज द की एलिमेंट, जबकि ये लोएस्ट रेशियो बन रहा है, इसको हटा रहे हैं, तो यू विल डिवाइड दिस एंटायर रो बाय दिस, दैट मीन्स 3/5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3/5 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 6/5, 2 इंटू 3/5 तो 6 हो जाता है, डिवाइड कर देना एक्चुअली, तो डिवाइड तो ऊपर में 3 चला जाएगा ना, तो 6/5, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, 3/5 मीन्स -4/5, 3/5 करने से दिस -3/5, और ये 3/5 और 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट को लिख देते हैं, x1 का कोफिशिएंट क्या है -2, इसका कोफिशिएंट क्या है x2 का -1, और इसका कोफिशिएंट x6 का क्या है 0, ठीक है। अब जो है जब 0 ये 1 तो यहाँ पर जब 0 आ गया तो ये 0 करना है, तो यू हैव टू यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा, यहाँ 0 लाना पड़ेगा, तो वही प्रोसेस से करना है। तो मैं ऐसा करूँ, क्योंकि जगह तो बहुत कम है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा के इस टेबल को यहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ पर फिनिश कर देंगे, क्योंकि हमको तो जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पर नहीं जाते हैं, ठीक, इसको
मैं मिटा के यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ले जाते हैं उस टेबल को। तो थोड़ा सा तो तुमको अपने से समझना ही पड़ेगा, मैं तो रास्ता बता दिए। इसको मिटा देते हैं। एक्चुअली इसको मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो काम चल जाएगा। इंडेक्स को भी मिटा देते हैं, ये भी मिट जाएगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी चेंज हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, x1 इज इक्वल टू इस चीज़ को यहाँ पर रख, तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 6/5, ये तो ऑलरेडी हो गया 6/5, और x6 इज इक्वल टू दिस इज -2, दिस इज -1, और ये 0। ठीक है, और ये करने के बाद इसको भी मैं लिख लेता हूँ 0 1 0 1 -4/5 -4/5 -3/5 3/5 एंड 0। ठीक है, ये तो बाकी इसको भी मिटा भी दे सकते हैं क्योंकि स्पेस तो चाहिए ना, तो मैं इसे मिटाने से कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं इसका तो मैं इसको हटा देता होगा, तो कॉपी से उतार देगा और क्या करेंगे, क्योंकि जगह का तो चाहिए। तो ऑलमोस्ट वी हैव रीच्ड टू द फाइनल स्टेज, इसी में फाइनल हो जाएगा। अच्छा, ये ओल्ड रो मैंने मिटा दिए हैं, तो तुम्हारा कॉपी में तो जरूर होगा, तो मैं दिखा देता हूँ इसका क्या होगा इसका। तो इट इज़ द रिवाइज रो, पहले ओल्ड रो को लिख लेते हैं। तो ओल्ड रो क्या था, ओल्ड रो इज, मैं एक तो कर देंगे इसको ओल्ड रो, क्योंकि टाइम नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओल्ड रो इज 1, देख लो 1 1 1/3, दिस इज द ओल्ड रो 1/3 3 0 1 2 3 0, ये जो ओल्ड था ये था। ठीक है, 1 1 1/3 1/3 इस तरह से। तो मेरे को सेकेंड ये पोजीशन है ना जो 0 था, x2 को लाए, तो यहाँ 0 करना है, यहाँ भी 0 करना है। विथ पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन में 0 लगाना है, 1 2 3, इस पोजीशन में 0 लगाना है। तो दिस इज द रिवाइज रो। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ 0 आ जाएगा, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटायर को, तब सब कट देंगे। तो 6/5 इंटू 1/3, सब में 1/3 से 0 से 1/3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। दिस इज 1/3 से मल्टीप्लाई करके 0 करना है इसीलिए -4/5 इंटू 1/3, और -3/5 इंटू 1/3, और 3/5 इंटू 1/3, और 0 इंटू 1/3 मतलब 0। तो ये इंटायर जो रो हो जाएगा इसको माइनस कर देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस था इसलिए प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस इस तरह से। तो ये करते तो कितना जाएगा, ये 1 माइनस है, 1 माइनस 3 × 6 2/5 इज 5, तो 3/5 हो जाएगा, दिस इज 3/5। ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1/3 प्लस 4/15 प्लस 4/15, तो क्या हो रहा है 15, 5 प्लस 4 जो 9/15, 9/15 में 3 बचा पूरा 3/5, ये 3/5 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है प्लस 1/5, कि 3 कर रहा है 1/5, और ये भी -1/5, और ये 0। तो मैं लिख देता हूँ 3/5, दिस इज 3/5 1 0 3/5 प्लस 1/5 माइनस 1/5, और ये 0। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो इसका बाद -3/5 1 0 19/5 आ रहा है, प्लस 3/50 -1/5 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसका बाद क्या होता है 1/3 1/3 1/3 3 0 1/3, थर्ड पोजीशन में लाना है, तो 6/5 1/3 1 1 1/3 1 1 1/3 1/3 3 0। ठीक है, 6/3, तो 6/15 और 3/5 3/5। ठीक है, 1 0 1 0, और ये 4/5 इंटू 1/3 4/5 1/3, सॉरी ये प्लस होगा ना, 1/3 प्लस 4/15, तो 15 3 5 15, और प्लस 4 5 9 9/15, 3 से 3, ठीक है 3/5,
ओके अगेन 1/5 3/5 का बाद माइनस 3/5 इंटू प्लस हो जाता है 1/5 माइनस 1/5 माइनस, हाँ ठीक है ओके। और फिर एक 6 का मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उसी तरह का ही है। तो एक 6 का करोगे, देखोगे ये 0 0 0 0, दिस इज 1, भी 0 लाना है 1, ये +1 -1 और प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कर दिए। क्या इस दिखाना पड़ेगा? तो ठीक है दिखा देते हैं। अगर इफ यू फील प्रॉब्लम तो इसको भी दिखाई देते हैं। और द प्रोसेस इज सेम। तो अपनी देख लेते हैं, वीडियो बड़ा हो जाने से फिर बहुत तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, ये बहुत बड़ा हो गया सॉरी। तो मैं इतना तक कर दिए। तो उसका आगे जो है फिर इंडेक्स रो का वैल्यू निकालना है। तो इंडेक्स रो का दिस इंटू दिस, फिर इस पर क्या हो जाएगा -2, ये 0 हो जाएगा। ये भी देखोगे 1 इंटू -1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा। और इसको करके देखना है, इसका कितना हो जाएगा -2 इंटू दिस। तो मैं करके दिखाता हूँ, -2 इंटू 3/5 -2 इंटू 3/5 -1 इंटू दिस, दैट इज प्लस 4/5 प्लस m। अच्छा जो भी है मैं इसको नहीं भी करता हूँ तो चलेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ही आ जाएगी। बिग एम प्लस समथिंग हो रहा है ना, अच्छा करके दिखा देता है 5। तो ये -6 -2/4 है ना, तो -2/5 तो 5। तो एम ये 4/5 -6/5 इज इक्वल टू 5 और -2/5। तो एम इज सो हाई, इसका वैल्यू एक्चुअली इसका वैल्यू आ रहा है एम -2/5। तो एम इज सो हाई, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से मतलब है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव हो गया, दैट इज नेक्स्ट ये 0 है। और ये जो है -2 इंटू दिस, इसको करके देखते हैं -2 इंटू 1/5 दैट इज -2/5 -2/5, और ये माइनस प्लस 3/5 1 इंटू 0, ये टोटल जो है -0, तो इज इक्वल टू 5 1/5। दिस इज पॉजिटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव। और यहाँ पर कितना हो रहा है देखिए इसका, ये जो है दैट इज माइनस प्लस 2/5 -3/5 प्लस m means again very big amount, -5 1/5, but it is positive because m is very high, m -1/5, this is again positive, m is very high and this is 0 0. Now check all the values of the index row, greater than is equal to 0, zj minus cj greater than is equal to 0. That's why we have reached to the optimum. मेरा काम खत्म, हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर रहता है और जो इसमें नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो आंसर विल बी x1 इज इक्वल टू 3/5, x2 इज इक्वल टू 6/5, और x3 क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू 0, x नहीं है इसमें। x4 क्या हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू 0, x5 इज इक्वल टू 0, x6 ये भी 0 ही है, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव जेड स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट जेड स्टार निकालेंगे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग का था, दैट इज -2 इंटू x1 -2x1 माइनस क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक बार देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज -x2, और बाकी सब जो है वो तो तुम्हारा स्लैक्स आपका सेकंड में लिख ही देता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिवाइज करने के बाद -m इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4 माइनस m इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। तो पुट द वैल्यूज, -2 इंटू x1 का वैल्यू क्या जा रहा है 3/5 माइनस x2 मतलब 6/5 माइनस m इंटू x3 इज 0 प्लस 0 इंटू x4 का वैल्यू जो भी है 0 इंटू 0 माइनस m का वैल्यू माइनस m इंटू x5 0 प्लस 0 इंटू x6 का भी 0। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। तो ये आंसर इज दिस इज इक्वल टू -6/5 एंड -6/5। ये भी -6/5, इसका मतलब क्या है 5 -12/5 होगा। तो ये जेड स्टार है, लेकिन हमारा मिनिमाइज करने का था, तो देन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड स्टार, ये दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ -12/5, दैट इज इक्वल टू 12/5। दैट मीन्स योर मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज 12/5। योर आंसर विल बी दिस x1 दिस x2 दिस एंड जेड का वैल्यू जो है दैट इज
12/5. This is minimum, sorry, minimum का जो वैल्यू है 12/5. In this way you can solve a minimization problem. Okay, though it looks very lengthy, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम में इतना बड़ा प्रॉब्लम जनरली नहीं दिया जाता, बट इट डिपेंड्स. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टेबल तक दिखाओ तो फर्स्ट टेबल तक दिखा देना है. जब बहुत सारे बुक में थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा भी दिख सकता है, लेकिन देयर इज 2 इश्यूज. वो लोग स्ट्रेट वे में माइनस मिनिमाइजेशन लेके ही शुरू किया. हमने जब मैक्सिमाइज करके सॉल्व किया, क्योंकि आई एम फॉलोइंग वन मेथड जो स्टैंडर्ड बुक्स में भी वही मेथड फॉलो किया. लेकिन होता है कोई कोई बुक्स में ऐसा भी है जो मिनिमाइजेशन स्टैंडर्ड पकड़ चल रहा है, तो उस समय में जो क्राइटेरिया का पॉजिटिव, वहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ हमने बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वहाँ ऑप्टिमम रीच करने के लिए लेस देन इक्वल टू 0 होगा. आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच. कोई प्रॉब्लम अगर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है, एंड आई विल रिप्लाई इट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. क्योंकि मेरा पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट मे बी प्रॉब्लम फॉर यू एज यू आर द बिगिनर्स. तो डाउट हो सकता है, तो कोई डाउट होगा तो जरूर मेंशन कर देना है कमेंट बॉक्स में. आई डेफिनेटली गिव रिप्लाई एट द अर्लीस्ट पॉसिबल. और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दे देना है, एंड यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो सो दैट so many new videos are coming जो तुम्हारे पास इमीडिएट चला जाएगा. थैंक यू वेरी मच. ओके.